نے فرمایا والذین معه اشداء الکفار، یعنی جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، جو صحابی جو صحابی میرے نبی کے ساتھ ہیں، وہ لوگ کیسے؟ اشداء الکفار، کافروں پر زبردست ہے، یعنی جب بھی کافروں سے لڑتے ہیں یا ان سے جہاد کرتے ہیں تو بڑے زبردست جہاد کرتے ہیں، کسی کو نہیں دیکھتے، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، اسلام اور دین کی خاطر، اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں، کفار کو ختم کر دیتے ہیں۔ رحماء بینہم، اپنے دین والوں سے جب ملتے ہیں تو بے دل ہو جاتے ہیں، بے درمی سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں مسلمان کو دیکھتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، معانقہ کرتے ہیں، گلے لپٹ لیتے ہیں، ہاتھوں کو مصافحہ کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں میں آپس کی محبت اللہ کی دی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ جب بھی کسی مسلمان کو دیکھتے تو ہمارے دل میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، چاہے ان کو جانتا ہو نہیں جانتا بھی ہو، لیکن جیسے مسلمان کی صورت دکھتی ہے ہمارے دل میں ایک محبت آٹومیٹک آ جاتی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کی اخوت ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں آٹومیٹک محبت دیا، ایسا غیروں میں نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ یہ محبت صرف اور صرف اسلام والوں میں، دین والوں میں، مسلمانوں میں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کا حال کیسا ہے کہ جب وہ کافروں کے ساتھ لڑتے ہیں تو بڑے زبردست ہوتے ہیں، اور جیسے ہی اپنے دین والوں کے ساتھ ملتے ہیں تو بڑے ہی نرم دل، نیک دل ہو جاتے ہیں، بڑے ہی محبت والے ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو لپٹ لیتے ہیں، مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندو تم جب دیکھو گے جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، جب ان کے چہروں کو دیکھو گے کہ ان کو رکوع اور سجود کی کثرت سے زیادہ عبادت کر کے، رکوع اور کثرت سجدوں سے ان کے چہروں کے رنگ زرد پڑ جاتے ہیں، ان کے چہروں پر ایک نور جب پیدا ہو جاتا ہے اور ان کے چہروں، ان کے پیشانی سے چمک آ جاتی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کا نور ہے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے، ان کی طرف سے غائبانہ ہے، ان کے اوپر ایک روشنی پیدا ہو جاتی ہے جو چہروں پر چمکتی ہے۔ اس واسطے اللہ والوں کے چہروں کو دیکھنا بڑا بڑا ثواب کا باعث ہے، کیونکہ ان کے چہروں پر اللہ کا نور چمکتا ہے۔ اچھا، کسی نے پوچھا، صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھے، پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ چہروں پر جو رونق جو آتی ہے، وہ چہروں پر جو چمک آتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ چمک ہے جو تہجد گزار والوں کے لیے، جو تہجد پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو چمکا دیتا ہے، نور سے روشن کر دیتا ہے، اور ان کو دیکھو گے تمہیں دور سے دیکھتے پہچان لیں گے کہ ان کی قسم کی چمک رہیں گی، ایک اٹریکشن رہے گا ان کے چہرے پر۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ اللہ کا نور ان کے چہرے پر عکس پڑتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، تہجد گزار ہوتے ہیں، تو اللہ کا نور ان کے چہروں پر ایک روشنی ڈالتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے سورج چاند کو روشنی پہنچاتی ہے۔ اب چاند ہے، چاند اپنی طرف سے تو نہیں چمکتا، سائنس میں معلوم ہے، چاند ایکچولی دا مون از اے ریفلیکٹو لائٹ آف سن، مون جو چمکتا ہے، مون کی جو روشنی ہے وہ کیا ہے؟ سن کی ریفلیکشن ہے، خود سے نہیں چمکتا۔ اس طرح مومن بندہ بھی یا مومن بندی عورت بھی جب تہجد کو پڑھتی ہے تو تب اللہ کا نور اس کے چہرے پر، اس کا نور ریفلیکٹ ہوتا ہے، اللہ کا نور ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تہجد گزار بندوں پر، ان کے چہروں پر ایک نور سا ہوتا ہے۔ اسی طرح کثرت سے سجدہ کرنے سے اللہ تعالیٰ بندوں کے چہروں کو نور سے منور کر دیتا ہے، یہ بھی ان کے کثرت سے رکوع اور سجود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا، چند لوگ سمجھتے کیا ہے کہ ان کے جو پیشانی پر گھٹے پڑ جاتے ہیں، یاد رکھو کہ پیشانی پر جو گھٹے پڑتے ہیں وہ زیادہ رگڑنے سے ہوتا ہے، سجدے رگڑے تو زیادہ آ جاتے ہیں،
تو रगड़ रगड़ के जो घट्टे बड़े बड़े घट्टे पैदा करते हैं, ये निशानी इसकी जो बात यहाँ नहीं है, समझे नहीं? तो ये निशानी उसका जिक्र यहाँ नहीं है। निशानी का मतलब ये कि चाहिए, चेहरे पर रौनक आने चाहिए। बोलते नहीं क्या रौनक नहीं, सो चेहरा है बस का, या किसी को देख बोलते क्या रौनकदार चेहरा है, क्या प्यारा चेहरा है, क्या बोलते? क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर अल्लाह का नूर है, उसकी रोशनी है, उसको रौनकदार चेहरा बोलते हैं। लेकिन ये घट्टा से क्या भी फर्क नहीं। लोग समझते हैं कि जो घट्टे वाले हैं उन्हें बड़े नमाजी परहेजगार है, वो दिखावा है, वो दिखावा है। हालांकि घट्टे नहीं रहना चाहिए, जितना घट्टे नहीं रहेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि नमाज जो हमें पढ़ते हैं अल्लाह के वास्ते करते हैं। लोगों को दिखाने कैसे हमें नमाजी है, क्या काले काले घट्टा बता के बड़ा नमाजी है बताने कैसे, क्या अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। तो उसका से बुजुर्गान दिन पढ़ते हैं, एक्चुअली अवॉइड करते हैं, घट्टे वालों से मिलते नहीं, घट्टे वालों को वो दूर रखते हैं, क्योंकि वो जरा क्या बोलते हैं उसको, दिखावे वाले होते हैं अपनी इबादत का, उनको वो दिखावा पसंद नहीं आता। खैर, तो यहाँ पर एक चीज और बताना मकसद ये है कि बंदों में जो नमाज और रुकू करते हैं, क्यों करते हैं? अल्लाह फरमाता है तराम रुकान सुज्जद यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। वो इस वजह से भी नमाजें पढ़ते हैं, रुकू और सुजूद करते हैं कि अल्लाह की रजा तलाश करें, अल्लाह की मोहब्बत तलाश करें, अल्लाह की खुर्बत तलाश करें, अल्लाह का प्यार हासिल करें, अल्लाह की रहमत हासिल करें। उनका मकसद दुनिया का नहीं होता, अल्लाह को राजी करना होता है, अल्लाह से खुर्बत हासिल करना होता है। दुनिया से उनको कोई सरोकार नहीं। दुनिया वालों को बताने कि मैं नमाजी परहेजगार हूं, नहीं कि नहीं करते, वो बस अपने रब को राजी करना चाहते हैं। तो ये मकसद है उनकी इबादतों का। सीमा फी वजूह मिन असरी सुजूद, तो सुजूद ज्यादा करने की वजह से उनके चेहरों पर जो एक रौनक जो आती है, जो चमक जो आती है, तुम उनके चेहरों से पहचान सकते ये ज्यादा इबादत गुजार बनता है, ये अल्लाह का मुखर्रिब बंदा है, ये अल्लाह का नूर वाला बंदा है, ये बड़ा रौनक वाला बंदा है अल्लाह का, तुम्हारे को उससे पता चलता है। मसलुम ज़ालिका मसलुम फी तौराती व मसलुम फिल इंजील, उनकी मिसाल तौरेत में भी है और इंजील में भी। इसका मतलब ये है कि तौरेत और इंजील में लिखा गया है कि एक ऐसी उम्मत भी आएगी जो अपने जिंदगियों में कसरत से अल्लाह का सिजदा करेगी, अल्लाह की रुकू करेगी, और उनके चेहरों में चमक होगी, उनके चेहरों पर अल्लाह की तरफ से रौनक सी होगी। इसका जिक्र पुरानी किताबों में भी आकर है, यानी मुसलमानों का जिक्र पहली किताबों में भी दर्ज हो गया है कि ऐसे अल्लाह के नेक बंदे भी आएंगे जो कसरत रुकू और सिजदों की वजह से उनके चेहरे चमक रहे होंगे। फरमाया गया कि क़ियामत में जब उम्मत मुस्लिमा को, सरकार को सहाबा किराम पूछी, या रसूलल्लाह, जब क़यामत कायम होगी सारे लोग आ जाएंगे, आप अपनी उम्मतियों को कैसे पहचानेंगे? हुजूर को पूछे तो हुजूर ने फरमाया, मेरे उम्मतियों को इस तरह पहचानूंगा कि उनके चेहरे चमक रहे होंगे, उनके हाथ चमक रहे होंगे और उनके पैर चमक रहे होंगे। सारे सहाबा किराम जी, या रसूलल्लाह वो कैसे होगा? इस वजह के मेरे उम्मती कसरत से नमाजें पढ़ते वक्त वजू करते होंगे। वजू करते ना, तो वजू की वजह से उनके चेहरे, उनके जो 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 हाथ पे पानी लगता है, जो पाँव में पानी लगता है, और उनके सर में जो पानी मसा का लगता है, इससे उनके चेहरे, उनके सर और उनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे। दूर से पहचान लोगा, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती है, ये मेरा उम्मती, ये मेरा उम्मती। एक रिवायत एक है। दूसरी रिवायत क्या है? एक हदीस में यूं भी आता है कि क़यामत के दिन नूर के मेंबरों पर रौनकदार चमकदार चेहरे वाले बिठाए जाएंगे। सारे अंबिया किराम रश्क करेंगे, सरप्राइज रहेंगे कि ये कौन लोग जिनके चेहरे इतने चमक रहे हैं। तो वहां से निदा आएगी कि ये मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है। अल्लाहु अकबर, आखिरी नबी के ऐसे उम्मती भी थे। इसके बाद बड़ी लंबी हदीस है जिसमें जिक्र है कि ये वो बंदे होंगे जो अल्लाह के मुखलिस बंदे हैं, मुकर्रब तरीन बंदे हैं, जो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं बगैर किसी खूनी रिश्ते के, सिर्फ अल्लाह की खातिर मोहब्बत करने वाले बंदे थे ये, और अल्लाह की कसरत से इखलास के साथ इबादत करने वाले, और
बड़े ही परहेजगार बंदे अल्लाह के थे। तो इन बंदों के बारे में और आगे की हदीस में आता कि वो बंदे होंगे जो चेहरे चमक वाले होंगे, तो उनके ऐसे 70,000 होंगे मेरे उम्मत में। तो उन 70,000 के एक अल्लाह ताला 70,000 बंदों को शिफात का उनको चांस देगा। तो उनके साथ 70,000 बंदे जाएंगे। आगे और भी फरमाया कि उन 70,000 के एक के साथ एक 70,000 जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि इनका जो जिक्र आया है, ये अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मती जो औलिया किराम के जुमरे में आते हैं, उनका जिक्र है। और ये वो होंगे जिनके झंडे में काफी तादाद में लोग भी उनको इनके झंडे के साथ जाते होंगे। ये उनके मुरीदीन होंगे, उनके मुतखिदीन होंगे और उनको फॉलोअर्स होंगे। समझे? इसके वास्ते फरमाते हैं कि किसी ना किसी बुजुर्ग का दामन थाम लो ताकि क़यामत में तुम बगैर किसी सहाय के ना रहो। समझे नहीं? तो वहां पर जाने के बाद हमको सिवाय कोई चारा नहीं, हमारे गुनाहों का क्या होगा मालूम नहीं, बस उनका सहारा, हुजूर की शफाअत का सहारा और अपने प्यारे पीर मुर्शिद और अपने प्यारे बुजुर्गों का सहारा कि वो हमारी शफाअत के लिए हाजिर हो जाएंगे। तो ये सहारा हमको क़यामत में मिलेगा इंशाअल्लाह। तो आगे अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका मसलुन फी तौरात व मसलुन फिल इंजील। तो मेरे ऐसे बंदे जो जिनका जिक्र अभी हुआ कि चेहरे चमक रहे होंगे और ज्यादा रुकू सजदे करने वाले होंगे, उनकी मिसाल कहाँ है? उनकी जो मिसाल है तौरात में भी बताई गई है, इंजील में भी इसका जिक्र आया है। अच्छा, आगे फरमाया वो मसलहुम फिल इंजील कज़रइन अखरज शतहु फहाज़रहु फस्तग़लज़ फस्तवा अला सूक़िही। ये मेरे मुसलमान बंदे, मोमिन बंदे, मेरे प्यारे नबी के उम्मती ऐसे होंगे जिसकी मिसाल ऐसी है कि एक खेती है जो शुरू में छोटा बारीक सा पौधा के साथ आता है, जाने जाने उसकी शाख बढ़ती है, जाने जाने तना मोटा होता है, फिर अपने तने पर खड़े होती है, हरी भरी हो जाती है, लंबी हो जाती है। अल्लाहु अकबर! ये कैसी प्यारी मिसाल है, खेतियों की मिसाल। खेती में क्या करता किसान? बीज, सूखी बीज वो जब बोता है, सूखी बीज जब जमीन में डालता है तो इसी अंदाज में उसको पेरवाता है कि उस पर जो खेती जोतता है, बाद में वेट करता है कि वो क्या होगा। आखिर में जब वो देखता है कि वो छोटा सा दाना एक छोटा पौधा ऊपर लाता है, वो पौधे से आगे बढ़ता है, फिर तना होता है, तना से शाखा आते हैं। तो अल्लाह ताला की जो शान है कि छोटे बीज से एक तने को पैदा करके आगे बढ़ाता, बड़ी शाख पैदा करता और उसको लंबी बनाकर उसमें जो खुशे बनाता, ग्रेन्स बनाता, चावल है, गेहूं है और दूसरे जो अनाज है, सब उसमें क्या करता है अल्लाह ताला, सब उसमें अनाज और पैदा करता। तो जैसी पैदा होते लंबे लंबे हो जाते खेती, तो क्या बोला अल्लाह ने आगे, यूजिबु ज़ुर्रा। और जब खेती बल्ली बड़ी हो जाती है, स्टार्टिंग में फार्मर क्या करता, छोटा दाना डालता सो, लेकिन जब 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 जाने 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 देखता कि जब खेती बढ़ती लहलहाती खेती हो जाती, हरी भरी हो जाती, तो वो देखकर कितना खुश होता किसान। यूजिबु ज़ुर्रा, ज़ुर्रा के माने फार्मर्स, द काश्तकार, उन्हें जो था उसको जब ये खेती बढ़ती देखा तो वो खुश होता है, वो दिल में खुश होता है कि मेरी मेहनत चीज हो गई, मेरा मेहनत करना कामयाब हो गया, क्योंकि मेरी खेती बढ़ गई, अब उसमें खुशी आ गए, उससे मुझे अनाज मिलेगा और उसके बाद मुझे फायदा ही फायदा, उसको खुशी होती है। इसकी मिसाल यूं भी है कि जैसे मुसलमान छोटे तादाद में थे, जब इस्लाम शुरू करे तो चंद लोग थे, आगे बढ़ते ऐसे बढ़ गए जैसे खेती बढ़ती है। खेती छोटी, खाली बीज डालते छोटे छोटे रहते, लेकिन आगे बढ़ते पूरा मैदान खेती से बढ़ जाता। नहीं, ऐसा मुसलमान भी कम तादाद में थे, लेकिन जाने फैलते पूरी दुनिया में फैल गए। तो ये जैसी मिसाल है खेती की मिसाल में, मुसलमानों की जो पैदावार है, मुसलमानों का जो पॉपुलेशन हुआ सारे वर्ल्ड में हुआ, आज भी काफिरा देखो जलते कहीं कोई
Muslims are getting, lot of population is increasing because of Muslims. तो ये जो हमारे इंडिया के जब some states में उसका बिल सो पास करेंगे, क्या है जल कर, तो अल्लाह फरमाता है यूजिबु ज़ुर्राया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार। काफिर लोग जलते हैं, काफिर लोग गुस्से में आते हैं हमारी बड़ाई को देखकर, हमारे बड़पने को देखकर, हमारे बड़पन पॉपुलेशन बढ़ने को देखकर गजब करते हैं। नहीं, काफिर वो जमाने में काफिर भी क्या हुआ, मक्के में देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चंद लोग थे, इतने तो बढ़ गए, बढ़ते 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 बड़े मदीना पूरा ऑक्युपाई कर ली। अरे आते आते फिर पूरा अरब फालो, पूरा अरब खा ऑक्युपाई कर ली। कौन जलते सोए? गैर मुसलमान देखो हमारे तरक्की को जलते हैं। तो अल्लाह फरमाता है यूजिबु ज़ुर्रा लियगीज़ बिल कुफ़ार, जो मुसलमानों की पैदावार को देखकर खुश होते हैं, जो मुसलमानों को पैदा करने वाले होते हैं वो खुश होते हैं, और जो अगेंस्ट होते हैं वो जलते हैं, वो गुस्से में आ जाते हैं मुसलमानों का पॉपुलेशन इंक्रीज होता देखकर। वअदल्लाहु लज़ीना आमनू, अल्लाह वादा करता है मुसलमानों अगर तुम ईमान वाले वामिलुस सालिहात और नेक अमल करते रहोगे, मिन्नुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, उनके लिए क्या अल्लाह फरमाया, तुम्हारे लिए मग़फ़िरत है, तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। तुम दुनिया में बहुत सारे गुनाह भी करे होंगे, खताएं करे होंगे, नफ्स की वजह से, अपनी ख्वाहिशों की वजह से, अपनी दुनिया की गर्ज की वजह से तुमने गलती से कोई गुनाह भी कर दिया होगा, तो बेफिक्र रहो, अल्लाह यहाँ से अश्योरेंस दे रहा है अगर तुम नेक अमल करते रहोगे, तुम जो भी मान अपने गलती से कोई भी गुनाह भी कर लिए हो तो अल्लाह तुमको माफ कर देगा, और क्या करेगा, अजरन अजीमा, तुम्हारे लिए बड़ा ही अजर देगा, जन्नत के बागात, जन्नत के महलात, जन्नत की प्यारी प्यारी तुम्हारे लिए सारी नेमतें तुम्हारे लिए इनाम में देगा। ये अल्लाह का वादा है। तो इसी वादे पर सारे मोमिनों को खुश होना चाहिए कि हमारा मौला ऐसा है जो हमको माफ कर देगा, हमारा मौला ऐसा है जो हमको नवाज देगा जन्नत में, चाहे हमें दुनिया में कुछ भी गरीब भी रहे, कैसी तकलीफ भी रहे, हमारे लिए आखिरत अच्छी है, ये ख्याल करके मोमिन मुसलमान खुश होता है। समझे नहीं? तो इस वजह से इस आयत से हमने आज सूरह फतह की पूरी सूरत को खत्म किया। अब चंद इसके बारे में जो वाक़यात है इसको सुन लो। देखो इसमें बहुत सारी चीजों का जिक्र हुआ, एक तो है ईमान का, एक अल्लाह पर एतमाद का, अल्लाह पर इखलास का। देखो बंदे भी कैसे थे, अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे सहाबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह पर 100% कामिल ईमान वाले थे, और जो हुक्म करते थे फौरन करते थे। समझे नहीं? अच्छा, इसमें 2-3 वाक़या यूं बताया गया कि हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, जो औरतों में वलियों में सबसे बड़ी वली, तो उनके बारे में फरमाया गया कि वो रात दिन में 1000 रकात नमाज पढ़ती थी। किसी ने पूछा राबिया इतनी तकलीफ कहीं को उठाते तुम्हें, सारा दिन में खाली नमाज में थे, 1000 रकात क्या कर कहीं को पढ़ते तुम्हें तक? बोले देखो भाई, मैं मेरे अल्लाह को, मेरे रसूल को खुश करना चाहती हूँ। क्यों? इस वास्ते कि क़यामत पे जब मैं उठूंगी तो मेरे नबी बोलेंगे, तमाम नबियों से बोलेंगे, है कोई तुम्हारे उम्मत में मेरी राबिया जैसी औरत जो दिन रात में 1000 रकात नमाज पढ़ती थी, इबादत गुजार करती थी? मेरे को देखकर वो सारे नबियों पर फख्र करेंगे, मैं ऐसी बनना चाहती हूँ। देखो क्या राबिया का ख्याल है कि अपने नबी को खुश करके क़यामत में उनको एजाज देने, उनको सारे लोगों में उनको फखरिया कहने का मौका देने के लिए, हुजूर को, अल्लाह और अल्लाह के रसूल को खुश करने के लिए वो इबादत कसरत से करते थे। तो यहाँ पर जो जिक्र क्या आया, रिजवान, अल्लाह के वास्ते रिजवान, फजलम मिनल्लाह रिजवाना, अल्लाह के रिजवान को, अल्लाह के फजल को तलाश करने के लिए नमाज पढ़ते हैं। तो राबिया बसरी का ये हाल था कि अल्लाह को राजी करने, हुजूर को राजी करने, हुजूर को खुश करने के लिए रात दिन में 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। हमें रात दिन में एक क्या बोलते हैं 20-25 रकात नमाज पढ़ने भी तड़पते। हमारे लिए नमाज पढ़ना ऐसा है गोया बड़ा सर पे बोझ रखे, ऐसा है, ऐसे प्यारे बंदे भी थे। अच्छा, एक और वाकया यूं बताया गया कि हजरत मारूफ करके रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग,
انہوں خواب دیکھتے. کیا خواب دیکھتے کہ رات میں جب سوئے تو خواب دیکھے کہ وہ جنت میں داخل ہو گئے ہیں, جنت کے ایک بڑے محل کے سامنے کھڑے ہیں, اور اس محل میں دیکھتے کیا ہے کہ اچھا فرش بچھایا ہوا ہے اور بہت ساری نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ اس کے سامنے جو داروغے کھڑے تھے, جو جوان بچے کھڑے ہوتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کس کا محل ہے, تو آپ ان کو بتایا گیا کہ یہ ابو یوسف کا محل. ابو یوسف کون بولے تو حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام, ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ کے خلیفہ, ان کے شاگرد, اور ان کے بعد انہوں بھی دین کا کام کرتے تھے. تو فرمایا آپ نے معروف کر کے پوچھے ان لوگوں سے کس وجہ سے ان کو اتنا بڑا مقام ملا جنت میں. تو بتایا گیا کہ معروف کرخی سنو, ابو یوسف دنیا میں صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کا کام کرتے تھے, اللہ کے دین کا کام کرتے تھے, اپنا دین سکھاتے تھے, لوگوں کو نصیحت کرتے تھے, برائی سے بچاتے تھے, نیکی کا حکم کرنے والے تھے, صرف اللہ کے لیے, اللہ کی غرض کے وجہ سے. اس کی وجہ سے ان کو دنیا میں ان کے جو فالوورز ہیں یا ان کو ماننے والے نہیں ماننے والے ان کو بہت تکلیف دیتے تھے. کبھی محفلوں کا آتے, کبھی نہیں آتے, کبھی ان کو کوفت ہوتی کہ یہ لوگ کیوں نہیں میری بات مانتے یا کیوں نہیں آتے, لیکن وہ سب انہوں صبر کر لیتے, صرف اللہ کو رضا کے لیے, اللہ کی محبت کے لیے, اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وہ کام کرتے تھے. دیکھو کتنا بڑا مقام ہے ایک تعلیم دین کو پھیلانے والے کا, سمجھے. تو اسی طرح ایک اور واقعہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے بزرگ, ان کا حال یہ تھا کہ جب بھی گھر سے باہر جاتے تو ایک لوٹا لے کے جاتے, ایک لوٹا پکڑ کے جاتے. ان کے مریدوں میں سے ایک مرید دیکھے کہیں کوئی خالی لوٹا کہاں گئے تھے, جاتے بولتے بھی نہیں کہاں جاتے, پھر آتے بھی کہاں چل جاتے معلوم نہ, ایک دن فالو کریں گے بول کیا کرا. حضرت ابراہیم خواص ایسا لوٹا لے کو باہر نکلے, پیچھے پیچھے جانے لگا, کافی دور تک چلے گئے, میلہ چل لیے. کافی دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم خواص پلٹ کو دیکھے تو انہیں حال کو, ارے حامد تو کہیں کو آتا ہے میرے پیچھے پیچھے, حامد تھا ان کا نام, حامد تو میرے پیچھے کہیں کو آ رہا ہے. تو بولے حضرت آپ کہاں جاتے ہیں, میں بھی آنا چاہتا ہوں. ارے میں جا رہا ہوں, رے مکے کو جا رہا ہوں. حضرت بلخ میں تھے, بلخ کا تو وہ یو کین ٹیک ایز اے عراق, تو وہاں اتنا دور کے, ارے میں بھی آ رہا ہوں, ارے کہیں کو آ رہا ہے, نہیں حضرت میں تمہارے ساتھ. اچھا چل, خالی لوٹا لے کر جانے والے بزرگان دین تھے, توشا لے کے, بڑے بڑے توشے لے کے جاتے ہیں آج کل دین کا کام کرنے والے. ذرا سنو, دیکھو اللہ والے کیسے تھے, اپنے ساتھ کھانا پینا نہیں رکھتے تھے, خالی لوٹا پانی وضو کے لیے لے کے نکلے. کافی دیر چلے گئے, کافی دور چلے گئے, رستے میں ایک نوجوان ملا, انہیں بھی ان کے ساتھ ہو گیا. حضرت ابراہیم بن خواص اس کی پرواہ نہیں کرو, ان جالے کو تھی. پیچھے جو بری تھا نا حامد بل, انہوں دیکھے یہ کئی کوئی ہمارے ساتھ آتا کیوں نہ, ان لوگ دونوں نمازاں پڑھتے, ان نمازی نہیں پڑھتے, چپ کے بیٹھا رہے تھے دیکھنے کو. وہ لوگ کیا کرے, حامد کیا کرے, جا کو حضرت ابراہیم خواص بولے دیکھو یہ نوجوان ہمارے ساتھ بہت دنوں سے آلے کو ہے, ہمیں نماز پڑھتے تو پڑھتا نہیں, چپ کے خالی بیٹھا رہتا نا, سے پوچھو نہیں کون ہی نہیں معلوم. اچھا کیا کرا, حضرت ابراہیم خواص بلایا اسے, ادھر بیٹھا, ادھر بیٹھ, تو کون تو, نہیں میں مسیحا, میں کو نصرانی, میں کرسچن, میں تیرا نام کیا پوچھے, میرا نام عبد المسیح. اچھا تو کہیں کو ہمارے ساتھ آتا, نہیں میں کیا ہوا کہ میں اپنی نصرانیت میں نے ان کے دین میں دیکھا کہ اللہ پر توکل کرنے والے کو اللہ بخود دیتا ہے, وہ خود دیتا ہے. تو میں بہت دنوں سے یہ پریکٹس کر لے کو ہوں, لیکن پھر بھی میرا نفس مریا نہیں, میرا نفس ہے نا اندر سے مجھے ستانے کو ہے. اب میں اسے کیسا ستانا چھوڑنا, ان کو جنگل میں ڈال کو چھوڑا لیں گے, سے مطلب جنگل میں نکل جائیں گے, اللہ کے بھروسے نکل جائیں گے, دیکھیں گے اللہ مجھے کیا کرتا ہے. تو وہ توکل کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے, میں اللہ پر بھروسے کو مضبوط کرنے کے واسطے میں جنگل میں آ گیا. دیکھا تو تم لگا میں ویسا جال لے کوئی, تمہارا ہاتھ میں خالی لوٹا فقط ہے. ارے کیا رہے ان لوگ تین دن سے جال لے کوئی لوٹے میں چھے نہ لوگا, تو انہوں بھی توکل والے بلکہ میں تمہارے ساتھ ہو گیا. تو حضرت بولے دیکھ اچھا چل, حضرت حامد کو بولے چھوڑ دے, کیا کی دیوانہ ہے, چلا آتا تو آتے چھوڑا ہمارے ساتھ, اس کی پرواہ نہ کرو. تو انہوں پھر نکلے, انہیں پیچھے آلے کو
चंद ऐसा दिन गुजरते गुजरते एक दिन बैठ गए, बैठ कर नमाज दोनों भी पढ़े, तो इन्हें नमाज ही नहीं पढ़ा, बैठा था। अब हजरत इब्राहिम खवास से बुला, जवान को, इधर बेटा, अब हमें जरा वक्त में हमें हरम के इलाके में जाने वाले हैं, यानी काबतुल्लाह के करीब आ गए। अब वो इलाके में मुसलमानों के सिवा अंदर कोई दाखिल नहीं होना। अगर तू आता है तो अपने आप को तू मुसलमान बनाता तो अंदर आ, नहीं मैं उसमें रहूंगा बोला तो तू अंदर नहीं आ सकता। तू अंदर आए तो हमें छोड़ेंगे नहीं तुझे। तो ये जगह कैसी है, हुर्मत वाली जगह है, सिवाय मुसलमानों को कोई अंदर दाखिल नहीं होना, समझे नहीं। तो अल्लाह का कुरान में हुक्म आया कि ये साल के बाद कोई मुसलमान के सिवा हरम में दाखिल नहीं होना। तो इस वजह से ये हुक्म के मुताबिक तो अंदर नहीं आ सकता जब तक मुसलमान नहीं। उन्हें वहां बिठा देने उसे, नहीं उन्हें माना नहीं, सावन छोड़ा ले, दोनों आगे चले गए। बाद में गए हज करे, हज कर तो अराफात का मैदान जाना पड़ता ना हज में। अराफात के मैदान थे कौन, हजरत इब्राहिम खवास भी, वो उनके मुरीद। क्या देखते हैं कि एक जवान, वो जवान जो वहां मिला उनको वहां सामने आया, दिखा, अरे तू यहाँ कैसे रहा है पूछे। तो पहले उन्हें आए से लपट लिया, लपट ले को पिशानी को छू में इसके हजरत इब्राहिम खवास के, बोला मैं अब मुसलमान हो गया। अच्छा वो कैसा हुआ तू? तो बोला देखो मैं जब मैं छोड़ को चले गए तो मैं वहां बैठने को था, तो मेरे सामने काफिला गुजरा, मैं पूछा तुम कहाँ जाते? बोला कि हज को जाते हैं। देखा कि अल्लाह ये इतने प्यारे मुखलिस बंदे तेरे हज को सब जाते, मैं कहीं को ऐसा हूँ बल्कि मैं भी अपना पूरा नसरा छोड़ को मैं भी एहराम बांध लिया। जैसे एहराम बांधा तो मैं क्या देखता हूँ, आंखें बंद कर को खोले तक मक्के के सामने खड़ा। ये मौजूदा देखिए, करामत देखो। मैं क्या हुआ, फौरन सीधे में गिर गया, अल्लाह से माफी मांगा और बोला कि वाकई अल्लाह तेरा दीन सच्ची है, इस्लाम सच्ची है, मैं मुसलमान होता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। समझे? तो कलमा पढ़ लिया। उसके बाद में हज को आया और यहाँ जब अरफात में पहुंचा तो तुमको मैं तलाश करते करते आखिर में पकड़ लिया। अब मैं मुसलमान हो गया, बिल्कुल हजरत इब्राहिम खवास का खास मुरीद हो गया। और आगे चलकर फरमाते हैं कि वो बहुत बड़ा वलीउल्लाह होकर बड़ा। तो ऐसा अल्लाह के बंदों में इखलास, तवक्कल अगर पैदा हो जाता तो अल्लाह ताला उसे नवाजते रहता दुनिया में, समझे नहीं। तो उसकी वजह से हमारी जो दुनिया की जिंदगी है, जो दुनिया की जिंदगी है वो तो है ही, उसके साथ साथ हमारा रुझान, हमारा एम क्या रहना, अल्लाह को राजी करने का, अल्लाह से कुर्बत हासिल करने का और अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने का। तो इसका एम रख लो और दुनिया में रहते हुए भी दुनिया को अपने दिल में मत रखो और हमेशा अल्लाह अल्लाह की जिंदगी गुजारो, दीन पर कायम रहो, नमाज की पाबंदी करो, वाकई अल्लाह भी तुम्हें कामयाब करेगा। ये आज का मैसेज है। अल्लाह ताला मुझे और आपको और तमाम मुसलमानों को नेक तौफीक अता फरमाए, ईमान की जिंदगी अता फरमाए, ईमान पर हमारा खातिमा फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमने सूरह फतह को खत्म किया। ओके, एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन है? कोई सवाल है? नहीं? अच्छा ठीक है, अब बोलो। नहीं मामू, लाइक कंटिन्यूअस उम्रे करते नहीं मामू। अब हमें इसे गए थे, कंटिन्यूअस उम्रे करते नहीं, तब एक तब मुंडा नहीं होता नहीं मामू, बार बार खासकर मर्द बने। औरतां को नहीं, हाँ देखो औरतां को नहीं, मर्दां को कहा भी नहीं, उसके ऊपर खाली एक तुम्हारा रेजर फिरा लेना सोता। मैं भी करता था उसे क्या है, खाली रेजर फिरा लेना, बालान नहीं आते फिर क्या करना, चुके रेजर फिरा लेना सोता। समझे नहीं? हाँ हाँ मामू जी। फिर क्या, अब तुम्हारी छोटियां लंबे लंबे जाती थी, मैं वहां जाको ज्यादा उम्र करे तो आधी छुट्टी इसके साथ आओ, क्या होता है अल्लाह की बात देव जी। इंशाअल्लाह मामू। मेरे बाला गए तो गए, जा अल्लाह के वास्ते, मैं खुद अपनी जान ही देने तैयार है ना, तो तुम्हें बाला देने का ही तैयार नहीं। ऐसा बोलो, ऐसा बोलना, या अल्लाह मैं मेरी जान देने तुझे तैयार हूँ, मेरे बाला क्या, मेरी जान भी ले ले, मैं तेरी जान मुझे तैयार हूँ बोलना, ऐसा बोलना। वो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं।
समझे नहीं? हाँ मामू जी इंशाल्लाह। हाँ, ऐसी मोहब्बत बताना अल्लाह से। नेक्स्ट, और कोई? ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। आगे चलेगा।